Good morning, student. Welcome to Gyanjyoti online classes. Student, now we are going to discuss chapter number 8, exercise. That is our chapter, the habitat of living. Okay, so student, in our previous video, we have discussed that living thing, characteristic of living things, that we know about the what is the characteristic of living things. Okay, so student, in this video we will discuss about the living things, where is present, where is they exists, and where is they survive, that different place that is their habitat. Okay, so student, mainly living things that exists all in our surround environment, that is the different habitat, desert habitat, pond habitat, also terrestrial. Okay, so student, now we have discussed about the short answer type questions and long answer type questions. Okay, so first, now we see short types of questions we will discuss. Okay, so student, first number A, take the correct answer. Okay, first number, एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड. ओके, तो देखो स्टूडेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड है कौन कौन सा? एयर, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए गिवन एयर, वाटर एंड प्लांट्स. ओके, सो एबायोटिक environment that include the all non living things. Okay, so plants, that is living things. Okay, number option B, plants, animals and soil. Option C, air, water and soil. Option D, soil, plants and water. So student, the correct answer is air, water and soil, because all these non-living things and abiotic component. Air, water, soil. Okay, next, frogs can breathe through spiracles, moist skin, lungs, both B and C, means moist skin and lungs. Okay, so student, number D, both B and C. Okay, student, number 3, bunches of leaves are found on the surface of water in option A, water lettuce. Option B, tap grass. Option C, water lily. And none of these. Student, bunches of leaves are found on the surface of water, that is the correct answer is water lettuce. Okay, so you have to tick all these numbers. Okay, student, number 4, leaves are reduced to spines in plants found in grassland, forest, deserts, mountains. So student, that spine found mainly leaves reduced in areas of desert. Okay, that type of plants found in desert area. Okay, so number C, deserts, you have to tick number C, desert. Okay, okay student, number 5th, which of the following can live without water for many days?
Okay, giraffe, horse, camel, dog. So student, among these option, which is the correct answer? Okay, so camel, that their body, inside their body there is a pouch like structure that store the water. Okay, so they can store water easily and they maintain their body balance. Okay, so camel is the correct answer, option C. Okay, student, next fill in the blanks. Environment consists of dex and dex components. So student, mainly two components in our surround environment, that is biotic and abiotic components. So student, environment consists of biotic and abiotic components. Okay, number B, fill in the blanks. Biotic and abiotic component. Okay, biotic, you have to fill only biotic and abiotic. Okay, components. Okay, plants like dex and dex are found floating in water. Okay student, so plants like water lettuce and duckweed. Water lettuce and duckweed. Okay, number 3, the dolphins and whales have dex to breathe. Okay, so student, that blowhole to breathe. Okay, present blowhole present in case of dolphin and blue whale. Okay, next student, number 4, the body of a fish is dex to help cut through the water and swim fast. Okay, so student, the body of fish, that middle part, that is broad, and the their size, the upper part means the abroad parts of their head part, that is narrow, and the tail part also narrow. Okay, so that is streamline. Okay, okay student, number 5, in desert plants leaves are reduced to spines. Okay, number 1 2 3, number 1 2 3 4 5. Okay, so number 5, that is spine. In case of spine, in desert plants leaves are reduced to spine. Okay, next number, state true or false. Number C, number C, state true and false. Okay, true, false. The plants growing in grassland have very stiff stem to without strong winds. Okay, so plants growing in grassland. Okay, grassland में बहुत सारा plant grow करते हैं, have very stiff stem to without strong winds. Okay,
तो ये क्या होता है, इसमें जो स्टेम होता है, ठीक है, व्हिच स्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो ये खड़ा रहता है स्ट्रॉन्ग विंड में, मतलब बहुत जोर से हवा आने से भी ये रहता है। नो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1। नंबर 2, कैक्टी कैरी आउट फोटोसिंथेसिस यूजिंग देयर स्टेम। यस, स्टेम से ही कैक्टी जो होते हैं डिजर्ट एरिया का ये जो है ये प्लांट्स है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट, कैक्टी कैरीज फोटोसिंथेसिस बाय देयर स्टेम, ट्रू। नंबर 3, ए कैमल्स होम स्टोर्स फूड एंड वाटर। होम सिर्फ इसमें दोनों को नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये फूड और वाटर दोनों को नहीं करता, ठीक है। पाउल लाइक उसके जो होते हैं वो सिर्फ फूड को कर सकता है और ये वाटर जो है वो अंदर है, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके। नंबर 4, वॉल्चर्स आर डिकम्पोजर्स। वॉल्चर्स जो होते हैं स्कैवेंजर होते हैं, डिकम्पोजर नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट है। ओके। फिफ्थ, प्लांट्स हैविंग नीडल शेप लीव्स आर कॉल्ड पाइन। यस, नीडल शेप होते हैं उसको पाइन कहा जाता है। ओके, सॉरी, ट्रू स्टेटमेंट, पाइन जो है ट्रू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नाउ वी कम मैच द कॉलम्स। ओके, नंबर डी, मैच द कॉलम्स। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, कॉलम ए 1 एंड 2। ओके, नंबर 1, हैबिटेट्स प्रेजेंट ऑन लैंड। Desert plant. Number 3, habitats in our around water. Okay, habitats in or around water. Habitats in or around water. For plants and animals, fifth, rock, soil, air, light. Number 6, bacteria and fungi. Bacteria and fungi. Okay, student, in here option A, xerophyte. B, terrestrial habitat. C, biotic components. D, aquatic habitat. E, decomposer. F, abiotic component.
ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ मैच करेंगे, ठीक है। हैबिटेट्स प्रेजेंट ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल। इसके बाद डिजर्ट प्लांट्स, जेरोफाइट कहा जाता है। फाइट मीन्स प्लांट्स होता है, ठीक है। तो जेरोफाइट जो होते हैं, जेरोफाइट जिसको कहते हैं डिजर्ट एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, वो जेरोफाइट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हैबिटेट्स इन और अराउंड वाटर। ओके स्टूडेंट, नंबर 3 हैबिटेट्स इन और हैबिटेट्स इन और अराउंड वाटर। ओके दैट इज एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वा मीन्स वाटर होता है, और जो वाटर में रहते हैं उसको एक्वाटिक हैबिटेट कहा जाता है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके रॉक, सॉइल, एयर, लाइट, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। बैक्टीरिया एंड फंजी, बैक्टीरिया एंड फंजी डिकम्पोजर। ओके तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट हैबिटेट्स प्रेजेंट ऑन लैंड, उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उसको जेरोफाइट, और जो हैबिटेट्स इन और हैबिटेट्स इन और अराउंड वाटर, वाटर में उसके अंदर रहेगा या तो बाहर रहेगा, एक्वाटिक हैबिटेट रहेगा, उसके फ्लोट करेगा या तो सिंक में नीचे भी रहेगा, ग्राउंड में भी रहता है, ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं उसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, ये बायोटिक। उसके बाद देखो रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, एयर, लाइट भी है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजी डिकम्पोजर्स। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम select the odd one. Okay now we come number E, select the odd one. Odd one out. Okay so student, first number 1 animal, scavenger, light, decomposer. Decomposers. Number 2 air, light, plants, water, number 3 river, sea, pond, lake. Number 4 lizard, spider, lizard, spider, polar bear, snake, number 5 yak, mouse deer, camel, archaic stick.
ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो कोड 1 कौन सा है इसमें से देखेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स स्कैवेंजर, लाइट डिकम्पोजर, तो देखो सभी बायोटिक यहाँ कंपोनेंट्स है, ठीक है। डिकम्पोजर भी होता है बायोटिक, स्कैवेंजर ऑल्सो बायोटिक, एनिमल्स ऑल्सो बायोटिक, बट लाइट ए बायोटिक, तो ये कोड 1 है, ठीक है। एयर, लाइट, प्लांट्स, वाटर, देखो इसमें एयर एबायोटिक, लाइट एबायोटिक, प्लांट्स बायोटिक, वाटर एबायोटिक। प्लांट जो है ये बायोटिक होता है, ठीक है। रिवर, सी, पोन, लेक, रिवर फ्रेश वाटर, पोन फ्रेश वाटर, लेक फ्रेश वाटर, ठीक है। सो सी मेराइन वाटर, इसका जो है ये मेराइन होता है, तो ये और वाटर, ओके। लिजर्ड, रेप्टाइल, स्पाइडर जो है ये भी इसके केस में आएगा, इसमें रेप्टाइल है, और ये भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जो है स्पाइडर भी इसमें होगा, ठीक है। स्पाइडर जो है ये आर्थ्रोपोड्स में आता है, ठीक है, इसमें नॉन कोडेड आ जाता है, ये हायर क्लास की होगी पोलर बियर, ठीक है। तो इसका हैबिटेट को देखेंगे, स्नेक भी रेप्टाइल से, बट हम इसको कौन सा बेसिस में इसको हम कोड 1 जो अलग है कौन सा बेसिस में वो देखेंगे। तो रेप्टाइल है, ये भी रेप्टाइल है, लेकिन स्पाइडर जो है आर्थ्रोपोड से, तो पोलर बियर, ठीक है। तो इसके जो हैबिटेट है उससे हम क्लासिफाई करेंगे, उसको उसके बेसिस से इसको कोड 1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, बट पोलर बियर है जो ये भी टेरेस्ट्रियल है, लेकिन ये जो है पोलर रीजन में रहता है, ठीक है। इसका जो हैबिटेट है ये आइस जो लैंड है, ठीक है, वहाँ पे रहता है, ये खास करके पोलर रीजन में रहता है, सो नॉर्थ पोलर रीजन, साउथ पोलर रीजन, ठीक है। तो ये और ठीक है। या मॉन्स्टर, कैमल, आर्कटिक, ठीक है। तो ये सभी भी ये पोलर रीजन में रहते हैं खास करके, ठीक है, जहाँ बर्फीले एरिया में आर्कटिक स्टे, ठीक है, जो आर्कटिक एरिया है उसमें रहते हैं। तो कैमल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में रहता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम नंबर F। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। डिफाइन हैबिटेट, ठीक है। तो हैबिटेट क्या है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नंबर F, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। First, define habitat. Okay, so first we have define the habitat. Habitat क्या है उसको define करेंगे. Okay, a place where plants and animals live is called habitat. A place where plants and animals live is called habitat. Okay. Number two स्टूडेंट देखो, डिफाइन इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, द सराउंड और द कंडीशंस इन विच ए पर्सन, एनिमल और प्लांट्स लिव. जहाँ पे यहाँ एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं और यहाँ लोग रहते हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट, द सराउंड और कंडीशंस
or condition in which a person, animal or plant live, सब यहाँ पे रहते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंटल मीन्स क्या है, देखो इन्वायरमेंट दी सराउंड्स और कंडीशन इन विच ए पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव, जहाँ पे यहाँ एनिमल्स, प्लांट्स और पर्सन रहेंगे। ओके स्टूडेंट, नंबर 3, नेम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज ऑन दी लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग में थिंग्स में जो आते हैं वो वायरस है। वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है। नंबर 4, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ कैक्टस प्लांट। हैबिटेट जो कैक्टस का है वो डिजर्ट एरिया में होता है। डिजर्ट। ओके, नेम एनी टू डिकम्पोजर, बैक्टीरिया एंड फंगी। डिकम्पोजर का है डिकम्पोजर है बैक्टीरिया एंड फंगी। They live on both dead animals or dead materials like wood। ठीक है, ये सब यहाँ पे फॉर्म होते हैं इसमें dead materials में, dead and decaying materials। ओके, what are the two main categories of habitat। ठीक है, habitat का मेन कैटेगरीज क्या है। ठीक है, तो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नंबर 6, एक्वाटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल। Okay student, so student these are all about your number very short answer type questions. Next, now we come short answer type questions. Okay student, number G, okay, short answer type questions. What are biotic components? ठीक है, biotic component क्या है। Biotic components are those which have life, for example plants, animals। ठीक है, biotic components जो होते हैं उसके जिसके लाइफ होते हैं, ठीक है, वो biotic components हैं। ठीक है, तो student biotic components are those which have life, for example plants। okay, next प्लांट्स और एनिमल्स होगा बायोटिक का। डिफाइंड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन। ओके, सो एडेप्टेशन इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स व्हिच एनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो ये जो क्या है उसके सराउंडिंग, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स क्या है कि एडेप्टेशन जहाँ पे वो लोग जाएंगे, स्पेसिफिक फीचर्स जहाँ पे उसके लिए इन्वायरमेंट ठीक रहेगा। ठीक है, कुछ एनेबल ए प्लांट और जहाँ पे वो लोग एबल होंगे रहने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जो चेंज होते हैं या तो वो जो सराउंड में जो उसके इन्वायरमेंट में वो रहेंगे वहाँ वो अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से वो वहाँ पे उपस्थित करेंगे। ठीक है, सो एडेप्टेशन इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स। ठीक है, वहाँ पे स्पेसिफिक फीचर्स रहेगा कुछ enable a plant or an animal to live in its surroundings। तो उस सराउंडिंग के बीच में प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ एग्जिस्ट है। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट आर दी एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में जो एनिमल्स रहते हैं तो उसके एडेप्टिव फीचर्स क्या है।
So animals living in grasslands have strong legs, keen eyesight, पावर जो होगी बहुत आईसाइट का जो होगी वो पावरफुल रहेगा, एंड ए बॉडी कलर सिमिलर टू दी सराउंडिंग्स इन विच दे लिव, जहाँ पे वो रहेंगे तो उसका बॉडी कलर जो है वो सिमिलर रहेगा। किस केस में रहता है कि ग्रासलैंड में जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग लेग रहेगा, कीन आईसाइट एंड बॉडी कलर सिमिलर, बॉडी कलर तीनों पॉइंट मेन, ये जो है लेग, स्ट्रॉन्ग लेग, कीन आईसाइट एंड बॉडी कलर सिमिलर टू दी सराउंडिंग्स इन विच दे लिव, ओके। नेक्स्ट नंबर 4 वाटर, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो एक्वाटिक एनिमल्स एंड हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ओके। सो द हैबिटेट्स व्हिच आर इन और अराउंड द वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक, ठीक है। जो एनिमल्स वाटर के अंदर, ठीक है, और उसमें फ्लोट करेंगे तो वो एक्वाटिक होगा, ठीक है। जो भी इसमें जिसका हैबिटेट हो, या तो प्लांट हो या तो वाटर, इसमें एनिमल्स हो, दोनों रहते हैं, प्लांट्स एनिमल एक्वाटिक दोनों रहते हैं। एंड व्हाइल द हैबिटेट्स प्रेजेंट ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में और एक्वाटिक में, ओके स्टूडेंट। सो ऑल दिस अबाउट योर number short answer type questions. Next, now we come number 5 and 6. Okay student, number 4 we already completed. Next, number 5, list any 3 adaptation in a camel that make it possible to survive in a desert, ठीक है। तो camel का इसमें एडाप्टेशन लिखना है, 3 एडाप्टेशन लिखना है जिससे ही वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करता है। सो एडाप्टेशन ऑफ कैमल, इट हैज ए वेरी थिक स्किन टू बियर द हीट ऑफ डेजर्ट एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस कैमल का जो थिक स्किन होता है उसे क्या करता है, वो हीट से उसको बचाता है, जो कि डेजर्ट एरिया में खास करके ज़्यादा वहाँ धूप होते हैं, गर्मी होते हैं, तो उससे वो बचा अपने आप को अडेप्ट करते हैं। एंड डेजर्ट एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, और उसमें वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। इट हैज पैडेड फीट टू वॉक इजीली ऑन सैंड, ठीक है। पैडेड फीट होते हैं तो वो जो रेत होती है सैंड में इजीली वो चल सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इट हैज ए हॉर्न टू स्टोर फैट फॉर द इमरजेंसी, ठीक है। जो उसके हॉर्न में फैट रखते हैं, ठीक है, उसमें फैट रह जाता है तो फैट को वो इमरजेंसी टाइम में उसको यूज करता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है एडेप्टेशन ऑफ कैमल। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। एक्लाइमेटाइजेशन क्या है, तो सॉरी स्टूडेंट देखो, सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। तो इसमें देखो एक्लाइमेटाइजेशन आर द स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो है जो एक्लाइमेटाइजेशन, जिसमें बॉडी, इसमें क्या होगा कि ये स्मॉल चेंजेस होते हैं, इसमें द बॉडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में इसकी बॉडी में चेंज होगी ओवर शॉर्ट पीरियड्स टू ओवरकम स्मॉल चेंजेस, छोटे पीरियड जस्ट कम समय के लिए ही होगा इन द सराउंडिंग, ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो ये जो है लास्ट नंबर, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि एक स्मॉल चेंजेस होते हैं, ठीक है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, नाउ वी कम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, क्लासिफाई देम बाय गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो एक्वाटिक प्लांट्स क्या क्या है उसको क्लासिफाई करना है, ठीक है। सो यू कैन राइट, आप लोग लिख सकते हो इसमें, द प्लांट्स दैट लिव्स इन वाटर, ठीक है, आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। दे कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 टाइप्स, फुल्ली सबमर्ज प्लांट्स, ठीक है। पहला जो है फुल्ली सबमर्ज प्लांट लिखना है, और सबमर्ज प्लांट का फर्स्ट उसका डेफिनेशन करना है।
नेक्स्ट जो इसका है पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स, ठीक है। तो पहले जो है इसमें देना है फुल्ली सबमर्ज, दिस प्लांट्स आर प्रेजेंट अंडर वाटर विच हैव नैरो एंड लॉन्ग लीव्स टू रेजिस्ट वाटर करेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेप ग्रास, हाइड्रिला। पार्शियली सबमर्ज प्लांट, पार्शियली, ठीक है। तो पार्शियली सबमर्ज प्लांट क्या है? दिस प्लांट्स हैव दी स्टेम्स रूटेड इन द सेडिमेंट एंड द लीव्स और फ्लावर्स फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ वाटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर लिली, लोटस, ठीक है। और फ्लोटिंग प्लांट जो पूरा फ्लोट करता है, दिस प्लांट्स फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस विद द रूट्स हैंगिंग सबमर्ज इन दी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल में आएगा डॉकवुड, वाटर लेटिस एटसेट्रा। नेक्स्ट नंबर 2, with the help of an activity show that light is important for the biotic components. Student, you can help your book page number 68, ओके। लैब एक्टिविटी जिसमें दिया गया है, इन लैब लिखा है, उसको आप कर सकते हो। सो यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, ओके। पेज नंबर 68, नंबर 2, ओके, एक्टिविटी। नंबर 3, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। तो हैबिटेट्स कितने टाइप का है? एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल। इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिट को डिस्क्राइब करना है और एक्वाटिक को करना है, ठीक है। जिसमें कि एक्वाटिक में सैलाइन वाटर हैबिटेट, उसके बाद फ्रेश वाटर हैबिटेट, 2 टाइप का हो जाता है। और टेरेस्ट्रियल में हो जाएगा फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ओके। स्टूडेंट नंबर 4 में मेंशन वेरियस एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का उसका एडेप्टेशंस क्या क्या है, ठीक है। सो ग्रासलैंड, तो उसमें क्या होगा? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इंक्लूड ग्रासलैंड, डिजर्ट रीजन्स एंड माउंटेन्स, दैट इज माउंटेनियस रीजन, इट्स वेरियस एडेप्टेशंस, उसके जो बहुत सारे एडेप्टेशन है, ठीक है। ग्रासलैंड, इसमें नंबर 4 में फर्स्ट ग्रासलैंड, ओके। स्टूडेंट नेक्स्ट ग्रासलैंड, डिजर्ट रीजन और माउंटेनियस रीजन के बारे में इसके लिखना है, ओके। स्टूडेंट ऑल दिस अबाउट योर long answer type questions, so you have to try yourself from number 1 to 4 long type questions, okay. So these all about your exercises, question number chapter number 8, okay. Next we will do chapter 9, okay. So student, okay, thank you, have a nice day.